Yeah, whoever wants to stand with me, they can stand. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। Hare Krishna. All right. Anyone wants to read the purport? I can read. Hare Krishna. Hare Krishna. A devotee of the Lord automatically becomes uninterested in the enchantment of material existence because he is a rasagriha, or one who has tasted the sweetness of the lotus feet of Lord Krishna. There are certainly many instances where devotees of the Lord have fallen down due to uncongenial association, just like fruitive workers who are always prone to degradation. But even though he falls down, a devotee is never to be considered the same as a fallen karmi. A karmi suffers the result of his own fruitive reactions, whereas a devotee is reformed by chastisement directed by the Lord himself. The sufferings of an orphan and the sufferings of a beloved child of a king are not one and the same. An orphan is really poor because he has no one to take care of him. But a beloved son of a rich man, although he appears to be on the same level as the orphan, is always under the vigilance of the capable father. A devotee of the Lord, due to wrong association, sometimes imitates the fruitive workers. The fruitive workers want to lord it over the material world. Similarly, a neophyte devotee foolishly thinks of accumulating some material power in exchange for devotional service. Such foolish devotees are sometimes put into difficulty by the Lord Himself. As a special favor, He may remove all material paraphernalia. By such action, the bewildered devotee is forsaken by all friends and relatives. And so he comes to his senses again by the mercy of the Lord and is set right to execute his devotional service. In the Bhagavad Gita, it is also said that such fallen devotees are given a chance to take birth in a family of highly qualified brahmanas or in a rich mercantile family. A devotee is in such a position is not as fortunate as one who is chastised by the Lord and put into a position seemingly of helplessness. The devotee who becomes helpless by the will of the Lord is more fortunate than those who are born in good families. The fallen devotees born in a good family may forget the lotus feet of the Lord because they are less fortunate. But the devotee who is put into a forlorn condition is more fortunate because he swiftly returns to the lotus feet of the Lord, thinking himself helpless all around. Poor devotional service is so spiritually relishable that a devotee becomes automatically uninterested in material enjoyment. That is a sign of perfection in progressive devotional service. A pure devotee continuously remembers the lotus feet of Lord Sri Krishna and does not forget him even for a moment, not even in exchange for all the opulence of the three worlds. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Amazing, amazing purport, right? तो इसमें जो बेसिकली शिला प्रभुपाद बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कर्मियों की, राइट, नॉन डिवोटीज की, दोज हु आर जस्ट फ्रूटिव वर्कर्स, जो सकाम कर्म कर रहे हैं, राइट, ऑफिस जाएंगे, काम करेंगे, पैसा आएगा, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपनी इंजॉयमेंट में लगाएंगे, भगवान के साथ कोई लेना देना नहीं है एज अ, और उसको कंपेयर कर रहे हैं वो डिवोटी से। डिवोटी क्या कर रहा है? डिवोटी भी ऑफिस जाता है, काम करता है, पैसा लाता है, पर उस पैसे से वो सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं कर रहा है। वो उसे क्या कर रहा है? वो उसे भगवान की सेवा में लगा रहा है, प्रसादम खा रहा है, चैरिटी कर रहा है, ठीक है, भगवान का नाम ले रहा है। तो अब उन दोनों में क्या डिफरेंस वो बता रहे हैं कि जो नॉन डिवोटी है, ही इज ऑन
ऑटो पायलट, जैसा करेगा वैसा भरेगा। बट एक डिवोटी की लाइफ में कृष्णा स्टार्ट्स इंटरफियरिंग, राइट, ही स्टार्ट्स इंटरफियरिंग। जैसे वो प्रभुपाद ने एग्जांपल दी है ऑर्फन की और एक किंग के चाइल्ड की, राइट, बोथ बच्चे ही हैं, ठीक है। एज अ जो बच्चे को चैलेंजेस आते हैं वो दोनों को आएंगे, बट एक ऑर्फन को जो चैलेंजेस आएंगे उससे हाउ ही कैन डील विद इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द चैलेंजेस विच अ चाइल्ड ऑफ द किंग फेसेस। क्यों? क्योंकि किंग एज अ विजिलेंट, क्या बोल रहे हैं वो, एज अ विजिलेंट कैपेबल फादर ही विल टेक केयर ऑफ हिम। सेम वे कृष्णा इज टेकिंग केयर ऑफ हिज डिवोटीज। हमें दिखता नहीं है, बट दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न, that we have to see the hand of the Lord, hand of Krishna in each and every day, right? अगर कोई ऐसा नहीं, मैं कहूँगा कि हाँ भाई डिवोटीज को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती पर नॉन डिवोटीज को प्रॉब्लम्स आती, नो, हमें भी प्रॉब्लम आ सकती हैं। बट हमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, चार चार तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो मेन प्रॉब्लम्स हैं विच आर कॉमन टू ऑल, राइट? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिजरीज। तो प्रॉब्लम सबको आएंगी, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, डिवोटीज नॉन डिवोटीज डज नॉट मैटर। बट जो 3 ताप हैं वो 3 ताप हमें नहीं लगेंगे, डिवोटीज को वो 3 ताप नहीं लगेंगे। कौन कौन से 3 ताप हैं, किसी को याद है? 3 मिजरीज। हरे कृष्ण प्रभु। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, राइट। तो इनको एक्सप्लेन क्या क्या है ये, अगर इनको एक्सप्लेन करना हो। आदि दैविक जो हमें अपनी बॉडी नहीं, एक्सटर्नल कॉजेस की वजह से मिलते हैं, लाइक नेचुरल डिजास्टर्स एंड ऑल, राइट। आदि भौतिक जो उसमें क्या लगा मैं भूल गई, नहीं जो हमें अपने कलीग की वजह से, नेबर्स, by your own mind, miseries caused by your own mind, and the third one is miseries caused by others, आध्यात्मिक। हाँ, तो ये जो थ्री टाइप की मिजरीज हैं, मिजरीज कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक अर्थक्वेक एंड नेचुरल फ्लड्स एंड ऑल, मिजरीज कॉज्ड बाय आवर ओन माइंड, हमारा माइंड डिस्टर्ब रहता है जैसे। थर्ड इज मिजरीज कॉज्ड बाय अदर्स। तो ये 3 टाइप की मिजरीज भगवान कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता में कि you will not be affected by these 3 type of miseries, right? Because there is a protective layer of Krishna's bhakti, so you will rise above all these things will not affect you, okay? So the same thing is saying here, okay? अब एज एन, और हम क्या है, हम नियोफाइट डिवोटीज हैं, काइंड ऑफ, वी आर नॉट एडवांस डिवोटीज एट दिस लेवल, राइट? तो नियोफाइट डिवोटीज क्या करते हैं, हम कई बार मैंने भी किया है कि यार कुछ चैंटिंग की तो कुछ फुलिशली मांग लिया, मटेरियल पावर मांग ली, मान लो कुछ भी मटेरियलिस्टिक मांग लिया, एंड दैट इज व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग, दैट इज फुलिश, एंड बाय डूइंग दैट वी गेट इनटू डिफिकल्टी। ठीक है, कैसे डिफिकल्टी में पढ़ सकते हैं? एक स्टोरी मैं सुन रहा था एक लेक्चर में, वो बोलते हैं कि एक बंदा था ब्रह्मचारी तो उसके उसके उसने अंडर गारमेंट्स, वैसे ही हट में रहता था छोटे से में, अंडर गारमेंट्स अपने बाल सुखाए तो उसमें चूहा आके उसको कुतरने लग गया। तो उसने कहा अच्छा चूहा है, तो उसने कहा कि अच्छा चलो मैं इसका सोल्यूशन ढूंढता हूँ, मैं इसके, उसने एक बिल्ली पाल ली। अब वो बिल्ली क्या है कि चूहे को खाएगी, ठीक है। अब वो बिल्ली पाल ली, अब बिल्ली क्या कह रही है, वो उसे दूध मांग रही है कि मेरे को दूध चाहिए। अब वो दूध की उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए उसने गाय रख ली। अब गाय आ गई, अब गाय गाय की और रिक्वायरमेंट है, गाय की रिक्वायरमेंट क्या है कि उसको चारा डालो, उसका वो खाओ, उसमें काम उसका और बढ़ गया। गाय, उसको मेंटेन करने के लिए, गाय को मेंटेन करने के लिए उसने शादी कर ली, वाइफ रख ली कि चलो वाइफ उसका ध्यान रखेगी। तो उसके बाद वाइफ रख ली तो उसके फिर उसकी डिमांड शुरू हो गई वाइफ की, फिर बच्चे हो गए और वो सब। सो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, चूहे से स्टार्ट होके वो बच्चों तक पहुंच गया। तो जब उसके गुरु महाराज आए तो उन्होंने बोला ये क्या कर रहा है तू, तो मतलब ये आश्रम की जगह ये इतना घर बन गया और ये तू बच्चों के पीछे भाग रहा है, ये क्या हो रहा है, राइट? सो दिस इज व्हाट वी डू। तो हम मटेरियल, थोड़े से मटेरियल गेन की वजह से हम अपनी कितनी सारी डिवोशनल सर्विस के एक्सचेंज में हम थोड़ी सी मटेरियल पावर मांगते हैं। दैट इज द मोस्ट फुलिश थिंग वी कैन डू, ठीक है। अभी वो एक स्टोरी भी आती है ना वो उसमें कि जो फल फल वाली आती है कृष्णा के पास और वो बोलती है कि फल ले लो, और कृष्णा क्या करते हैं, फल वो ऐसी दे देती है कृष्णा को। बाद में जब वो चली जाती है तो वो देखती है उनकी फलों की टोकरी, वो कृष्णा ने सब जेब से भर देते हैं वो,
and she got so angry. She said, and then she came back and she said ki Krishna, this is what you value my love for you, because I gave those fruits as a love, as a devotional service to you, and this is what you have done. I don't need them, right? So फलों के लिए कृष्णा क्या कर रहे हैं कि छोटा सा जो फल दिया है उसके लिए उनको वो हीरे जवाहरात दे रहे हैं कि यार ठीक है, लो मटेरियल गेन लो, मेरे पास मत आओ, ठीक है ना, वही रहो, खुश रहो अपने छोटी मटेरियल गेन लेके, पर डोंट डोंट डिस्टर्ब मी। बट जो रियल प्योर डिवोटी होता है, ही विल नेवर आस्क फॉर मटेरियल पावर और मटेरियल गेन्स in exchange for his devotional service, right? तो फिर क्या करते हैं, जो लेवल पे बढ़ जाता है बंदा तो वो डिवोटी, तो फिर वो क्या करते हैं एज अ स्पेशल फेवर, वो क्या करते हैं, वंस यू डिसाइड कि यार नहीं चाहिए मुझे, एंड वंस ही क्या करते हैं वो, फिर उससे वो चीजें लेनी शुरू कर देते हैं कि अच्छा बेटा ठीक है ऐसा है ना, तो अब तूने आना ही है मेरे पास, तो और फिर भी तूने मांगा, तो क्या अगर इसी स्टार्ट्स इंटरफियरिंग, जब वो इंटरफियर करते हैं तो क्या करते हैं, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स उनसे ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसको पता चलता है अरे यार मैं कहाँ भाग रहा था लोगों के पीछे, असली तो कृष्णा है। तो कृष्णा डेफिनेटली विल मेक यू रियलाइज दैट द थिंग्स व्हिच यू आर डूइंग आर नॉट गुड, ओनली फोकस ऑन मी, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, राइट। तो बट जब नॉन डिवोटी फॉल करता है, तो अभी अभी वो वर्स पे वापस जाते हैं, हाँ नेक्स्ट पेज चलते हैं चलो। इट इज सेड दैट सच फॉलन डिवोटीज आर गिवन अ चांस टू टेक बर्थ अगेन एंड अगेन, ठीक है। अब एक डिवोटी फॉल डाउन कर गया, मान लो उसने कुछ मटेरियल लिया या कुछ भी उसने गलत कर दिया, और एक नॉन डिवोटी फॉल किया, नॉन डिवोटी तो क्या ही फॉल किया, मतलब नॉन डिवोटी गलत संगति में पड़ गया या वट एवर, तो वो लीला प्रभु बोलते हैं कि एक डिवोटी और नॉन डिवोटी के फॉल डाउन में ये फर्क है कि जैसे अगर नॉन डिवोटी गिरता है तो सीमेंट की बॉल है, वो गिरी तो वो वहीं पर गिर गई, और जब नॉन डिवोटी गिरता है इज लाइक अ रबर बॉल, वो गिरता है और उससे डबल स्पीड से फिर वो वापस आता है ऊपर। क्यों? विद द मर्सी ऑफ कृष्णा, बिकॉज कृष्णा विल डू अ स्पेशल फेवर टू हिम, ठीक है, उनसे वो सारी चीजें ले लेगा जो कि उस डिवोटी को बिविल्डर कर रही थी, ठीक है। ही विल टेक दैट एंड देन ही विल रियलाइज ओके वो व्हाट आई वाज डूइंग, एंड देन ही विल डू द भक्ति, तीव्र भक्ति करेगा वो, ठीक है। मुझे जगन्नाथ राम प्रभु से बात कर रहा था मैं काफी पहले, तो वो भी थे, तो जॉब और मटेरियल चीजों की बात कर रहा था कि मेरी ये जॉब मैं ये कर लूंगा ये कर लूंगा, राइट। तो उन्होंने बोला कि देख दो ऑप्शंस हैं, या तो जैसे चल रहा है, जितनी भक्ति चल रही है और जैसी जॉब चल रही है चलते रहने दो, बट इफ यू थिंक कि आपको जॉब बड़ी करनी है, पैसा ज्यादा चाहिए अभी एट दिस मोमेंट, तो भक्ति विल डेफिनेटली बी कॉम्प्रोमाइज्ड, but it is okay if you want that as well, that is okay provided you have clear thought in mind कि यार अब मैं जो पैसा कमा रहा हूँ उसकी मैं सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करूंगा, आई विल रिटायर अर्ली, 60 की जगह मैं 50 में रिटायर हो जाऊंगा, बिकॉज नाउ आई एम डूइंग अ हाई पेइंग जॉब, आई कैन अफोर्ड टू रिटायर 10 years अर्ली। इट इज लाइक आप पीछे जा रहे हो भक्ति में, लाइक एरो पीछे जा रहे हो, देन यू विल गो विद फुल स्पीड, राइट। तो 50 के बाद आई विल गो विद फुल स्पीड, बट दैट इज अ बिट रिस्की एज वेल एट द सेम टाइम। सो दिस इज व्हाट अनदर एग्जांपल कि तुम पीछे जा रहे हो तो तुम आगे भी जाओगे अगर तुम्हें वो टेस्ट मिल गया है तुम्हें, राइट। तो जो नॉन डिवोटीज, अब हमें भी धीरे धीरे रियलाइज होने लग गया होगा, आई डोंट नो अबाउट एवरीवन, बट मैंने तो देखा है कि जब मैंने चीजें जो छोड़ दी है ना, अब वो जो हायर टेस्ट मिला है भक्ति करके, परम दृष्टवा निवर्तते, राइट, भगवत गीता में बोलते हैं कृष्णा। तो अब क्या होता है, कई बार मैं अपने नॉन डिवोटीज फ्रेंड्स के साथ, कभी मैं आज से 2 साल पहले मिला था नॉन डिवोटी, पहले मैं उनके साथ ही बैठता उठता पीता खाता पीता सब कुछ था, तो उसने मुझे बुलाया था आ जा यार, तो मैं चला गया, लाइक सैड देयर, बट वो मुझे मजा ही नहीं आया उनके साथ बैठ के, उनकी जो बातें करने का और जो उनके जो टॉपिक्स वो डिस्कस करते हैं वो मुझे मजा ही नहीं आया, एंड आफ्टर दैट आई नेवर मेट हिम, आई मीन ही इज माय क्लासमेट, आई मीन 10th तक वो मेरा क्लासमेट था। सो दिस इज हाउ इट इज, राइट, you don't feel like going there, एंड अगेन वो कैसे आया, बिकॉज कृष्णा डिड अ स्पेशल फेवर। मैं ब्रज बिहारी प्रभु का लेक्चर सुन रहा था, उसमें उन्होंने बताया, कहते एक बंदा
पुजारी था टेम्पल में, ब्राह्मण इनिशिएटेड पुजारी टेम्पल में, वो अपना कर रहा था कृष्णा कॉन्शियसनेस, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी, एंड समहाउ समथिंग हैपेंड एंड ही फॉल डाउन एंड ही लेफ्ट इस्कॉन एज वेल। तो उसके बाद ठीक है, वो अपनी मटीरियल लाइफ में चला गया, सब कुछ होता गया। 10 साल के बाद क्या हुआ कि उसको बुलाया, उसकी उसके ऑफिस में ना पार्टी हुई, तो उन्होंने कहा कि इस बार पार्टी हम फार्म पे करते हैं जाके। तो हरे कृष्णा फार्म पे गए वो, तो वो बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, कहते नहीं नहीं चल चल चल, कहता मेरा उनके साथ पुरानी हिस्ट्री है, आई डोंट वांट टू सी दोज पीपल फेसेस, आई डोंट वांट टू गो टू इस्कॉन टेम्पल एट ऑल। तो वो बोलते कि ठीक है तू मत जाना, तू गाड़ी में बैठा रहना। तो वो कहता ठीक है चलो चलते हैं। वो चले गए, वो गाड़ी में बैठा रहा, सब लोग अंदर चले गए। कहते यार आ जा, फिर उनके फ्रेंड्स को पता था कि चलो है, तो फिर वो कहते चल अंदर तो आ जा, देख तो ले, थोड़ा सा कर ले। तो एज सुन एज ही एंटर्ड, उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसके आंखों में से आंसू आने लग गए। जैसे जैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, ही एंटर्ड टेम्पल। वहां पे हरे कृष्णा महामंत्र उसके कानों में पड़ा, सारी पुरानी मेमोरीज दे केम बैक, राइट। फिर वो पुजारी वहां पे चामर कर रहा था पीकॉक फेदर से, ही यूज्ड टू डू दैट, एंड व्हेन ही सॉ दैट ही ब्रोक डाउन कंप्लीटली, एंड उसके बाद he stayed there, he never came back to his material life again. So this is the special favor, this is the potency of Krishna consciousness, that you will never leave it. Once अगर आप आ गए अंदर तो one way है, Krishna will never let you go. He will never let you go, right? तो और हम क्या कह रहे हैं कि हाँ अब वो नेक्स्ट बात चल रही है, तो he'll take a birth in the highly qualified brahmana or a rich mercantile family। ठीक है, ये हमें पता ही है कि अगर आपकी भक्ति बहुत अच्छी चल रही है तो आप किसके घर पे बर्थ लोगे? वैष्णवा के घर पे। अगर आपकी भक्ति मतलब 50% पे है या 40% पे है तो आप क्या लोगे? एक रिच मर्केंटाइल फैमिली में आप बर्थ लोगे, जहाँ पे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होगा आपकी भक्ति के लिए। यू डोंट हैव टू वरी फॉर रोटी कपड़ा एंड मकान। ठीक है, तो जब वो होगा तो यू कैन डू द भक्ति, बट फ्री विल स्टिल बी देयर। आपकी अपनी विल होगी वेदर यू वांट टू परस्यू और नॉट। ठीक है, तो तभी हम कई बार देखते हैं ना कि कुछ लोगों की भक्ति 98% या 90% वो अपनी कवर करके आए होते हैं लास्ट जन्म में, और फिर वो जब यहाँ आते हैं इमीडिएटली दे स्टार्टेड डूइंग लाइक 16 राउंड्स। मेरे तो ग्रेजुअली था 2 राउंड, फिर 8, फिर 12, फिर 16, ऐसा ऐसा चला मेरा। और मतलब मैं 16 पहुंचने में मुझे 1 साल लग गया था। बट यहाँ पे जैसे हमने देखे हैं कितने लोग हमारे इसमें भक्ति वृक्षा में, दे जस्ट केम, दे स्टार्टेड डूइंग 16 राउंड्स, राइट। व्हाई इज दैट डिफरेंस? और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो मतलब 25-25 साल निकल जाते हैं इसी प्रोसेस में, वो रहते हैं, बट वो 2 माला 1 माला 2 माला ऐसी वहीं तक ही रह रहा है। व्हाई इज दैट? तो इट इज बिकॉज ऑफ देयर पास्ट कर्मा। तो जो उनके पास्ट कर्मा हैं वो उनको आगे नहीं बढ़ने देते, राइट। जैसे अगर एक वेट गीली घास है, तो गीली घास को अगर मैं आग लगाऊंगा, आग लगाने की ट्राई करूंगा, तो वो जलेगी? नहीं जलेगी। तो पर क्या होगा अगर मैं गीली घास को हाथ जलाता रहूंगा तो वो गीली से क्या बन जाएगी? मॉइस्ट हो जाएगी वो। फिर क्या होगा? फिर नेक्स्ट जन्म में वो और भक्ति करने लगेगा, और भक्ति, फिर मॉइस्ट को फिर मैं आग लगाता रहूंगा तो वो फिर भी नहीं जलेगी, पर वो क्या होगी? मॉइस्ट से ड्राई हो जाएगी। फिर मैं ड्राई को आग लगाऊंगा तब उसमें आग लगेगी। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद एवरी वन ऑफ अस। अगर मेरी घास गीली है, अभी मेरे भक्ति में नहीं इंटरेस्ट आ रहा, कीप ऑन डूइंग टू मेक इट मॉइस्ट। एटलीस्ट चलो इस जन्म में नहीं तो नेक्स्ट जन्म में, क्योंकि कृष्ण भगवान ने क्या बोला है? आई विल प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव। भगवत गीता में है ना, उन्होंने श्लोका, आई विल प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव, आई विल प्रिजर्व व्हाट यू हैव, एंड आई विल प्रोवाइड व्हाट यू लैक। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है उसमें कि मरते टाइम पे और जो तुम जाओगे तो वट एवर यू आर लैकिंग आई विल गिव दैट। ठीक है, दैट रिमेम्बरेंस अगर आपको लैक कर रही है तो आई विल गिव दैट। ठीक है, एंड आई विल प्रोटेक्ट। आपकी जितनी भक्ति करी है उसको मैं नष्ट नहीं होने दूंगा, उसको मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। ठीक है, तो जो इंटेलिजेंट पर्सन है, ही विल नॉट लीव, ही विल नॉट बार्गेन हिज
devotional service with the material benedictions, right? तो for an intelligent person, जैसे कृष्ण भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना, both सम रहना चाहता है वो, he will be सम, जो सम रहते हैं कृष्ण भगवान के वो प्रिय होते हैं. गुड एंड बैड both are bad, pious impious both are bad. तो श्रीला प्रभुपाद बड़ी अच्छी एग्जांपल देते हैं उसमें, अच्छी तो पता नहीं, थोड़ी ग्रॉस है, I'll give you. वो बोलते हैं कि एक सॉफ्ट स्टूल है, सॉफ्ट वेट स्टूल पड़ी हुई है, और एक ड्राई क्रिस्पी स्टूल पड़ी हुई है. तो दो पिग हैं, वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि यार कौन सी ज्यादा टेस्टी है. ठीक है, तो श्रीला प्रभुपाद फिर ऑडियंस से पूछते हैं, कहते हैं अच्छा तुम बताओ मुझे, एक ड्राई क्रिस्पी स्टूल बढ़िया है कि एक सॉफ्ट वेट स्पंजी स्टूल बढ़िया है? ऑडियंस बोलती है कि दोनों ही नहीं बढ़िया, सब दोनों ही गंदे हैं. तो ये सेम थिंग, good and bad, both of them in the material world are bad, right? So only Krishna is good. So we should remember that कोई भी pious और impious, basically point ये है कि जो material, जो fruitative workers हैं और जो material gain हम कर रहे हैं, that is bad. ठीक है, हमें लगता वो good है, इस टाइम पे हमें अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, कि जो भी है मटेरियल गेन, किसको किसको नहीं पसंद, पैसा किसको नहीं अच्छा लगता, बट दैट इज आल्सो बैड if you are not doing it service of Krishna, right? Any questions, any comments? प्रभु जी, जैसे आपने बोला ना कि डिवोटीज की लाइफ में कृष्णा इंटरफियर करते हैं, वो आपने एग्जांपल दिया, लेकिन मुझे थोड़ा समझ नहीं आया कि हाउ डू वी नो दैट कि वो कृष्णा ही इंटरफियरेंस कर रहे हैं या माया एंजॉय करा रही है, माया बीच में आ रही है? हाँ, so Krishna is not directly dealing with us, right? Krishna is intervening through his energies. So माया आपको ऐसे करेगी. मैं आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल बताता हूँ. जगन्नाथ राम प्रभु ने दी थी अपनी हमारे भागवतम क्लास में. उन्होंने कहा कि मैंने नई गाड़ी खरीदी, तो कहते, जो कि मैंने अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन करी, मैंने गलती करी, तो कहते चलो एनी हाउ मैंने खरीदी, तो फर्स्ट डे ही वो पीछे से ठुक गई. नेक्स्ट डे क्या हुआ, या नेक्स्ट वीक क्या हुआ, उसका मिरर टूट गया. कोई आया वो मिरर उसका तोड़ गया. कहते कुछ ऐसा 2-3 इंस्टेंस हो गए. कहते मेरी सारी उसके साथ जितनी भी अटैचमेंट थी ना वो गाड़ी की खत्म हो गई. तो कहते मैंने कान पकड़ के ऐसे उठक बैठक किया भगवान जगन्नाथ भगवान के सामने, आई विल नेवर डू द सेंस ग्रेटिफिकेशन अगेन, राइट? एंड मैंने भी एक्सपीरियंस किया है. पहले हम घूमने जाते थे तो बड़ा मजा आता था. अब क्या होता है कि यार कई बार वो घूमने में वो मजा ही नहीं आता. क्यों? कृष्णा इज नॉट हेल्पिंग यू. आई मीन एवरीथिंग इज ऑर्डेन्ड बाय कृष्णा, राइट? विदाउट हिज सैंक्शन एक पत्ता भी नहीं हिल सकता. तो घूमने जाते हैं तो वो एक माहौल ही नहीं बनता घूमने वाला, वो मजा ही नहीं आता. भगवान कह रहे हैं अच्छा तूने घूमना है ना, तूने अपनी सेंस ग्रेटिफाई करनी है, मैं ले जा, सब कुछ कर देंगे, बट वो मजा नहीं आने देंगे. वो मजा जो है वो लाइफ में से चला जाता है. कौन सी लाइफ में से? जो मटेरियल लाइफ है. जैसे मैंने बताया ना कि मैं फ्रेंड्स के साथ, वही फ्रेंड्स हैं मेरे क्लास में, 10th तक मेरे वो क्लासमेट रहे हैं, उनके साथ मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आके उनके साथ घूमा फिरा हूँ, दारू पिया, सब कुछ किया है. अब उन्हीं फ्रेंड्स के साथ उनसे बात करने में मजा नहीं आ रहा. दिस इज समथिंग विच इज इंटरनली हैपनिंग, राइट? बाय ईटिंग प्रसादम, बाय डूइंग द साधना एंड ऑल दोज थिंग्स, you param drishtva nivartate, right? You get a higher taste. When you get a higher taste, you won't like the lower taste. जैसे मैंने पुजारी जी की बात बताई ना कि वो उस material life में he was miserable. The moment he entered into ISKCON, he said, wow, I mean, tears started coming from his eyes and he immediately left his material life. So this is what happens. I don't know if I answered or not correctly. So Krishna will make such arrangements that he will frustrate you materially. At that point you understand that okay, पहले तो मुझे ये चीज करके मजा आ रहा था, अब मुझे वो सेम चीज करके मजा क्यों नहीं आ रहा? Then you will realize okay, this is definitely Krishna's hand, right? Because there is no reason why I would not enjoy that. जो कि मैं पहले करता था, अब क्यों चला गया? मेरे में ऐसा क्या चेंज आया? I am the same Mitul, right? So, but it is not same. Internally, you are getting purified by chanting and eating prasadam.
All right. Let's go to the next one. अब next one यहाँ पे ना एक टॉपिक खत्म हो गया एक्चुअली, एक लॉजिकल एंड पॉइंट आ गया. नेक्स्ट वन इज टोटली डिफरेंट थ्रेड स्टार्ट हो रहा है 20, 21 एंड 22. तो ये थोड़ा टेक्निकल सा भी है, बट जस्ट बियर दैट, राइट? बियर विद मी, बट यू कैन आस्क क्वेश्चंस. आई विल गो वेरी स्लो. इदं हि विश्वं भगवान् वेत्रो यतो जगत्स्थान निरोध संभवः तदै सवयां वेद भवांस्तथापि ते प्रदेश मात्रं भवता प्रदाशितम्. The Supreme Lord, personality of Godhead, is himself this cosmos, and still he is aloof from it. From him only has this cosmic manifestation emanated. In him it rests, and unto him it enters after annihilation. Your good self knows all about this. I have only given a synopsis. You can see, right? Totally कहाँ से वो thread क्या चल रहा था, and it suddenly changed from here. तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि Krishna is the supreme Godhead, and he himself is the cosmos. He's saying himself is the cosmos, means he is inside this universe himself, and still he is aloof from it. This we have seen in Bhagavad Gita as well, right? And from him, this whole creation happened. Maintenance rests in him. He's maintaining it, and he's the destructor. He's annihilating it as well. And he's saying, you know that already, right? I'm just retelling. I'm just giving a synopsis. Anyone wants to read the purport? For a pure devotee, the conception of Mukunda, Lord Sri Krishna, is both personal and impersonal. The impersonal cosmic situation is also Mukunda because it is the emanation of the energy of Mukunda. For example, a tree is a complete unit, whereas the leaves and the branches of the tree are emanated parts and parcel of the tree. The leaves and branches of the tree are also the tree, but the tree itself is neither the leaves nor the branches. The Vedic version that the whole cosmic creation is nothing but the Brahman. Brahman means that since everything is emanating from the Supreme Brahman, nothing is apart from him. Similarly, the part and parcel hands and legs are called the body, but the body as the whole unit is neither the hands nor the legs. The Lord is the transcendental form of eternity, cognition, and beauty. And thus, the creation of the energy of the Lord appears to be partially eternal, full of knowledge, and beautiful also. The captivated conditioned souls under the influence of the external energy, Maya, are therefore entrapped in the network of the material nature. They accept this as all in all, for they have no information of the Lord, who is the primeval cause, nor have they information that the parts and parcel of the body being detached from the whole body are no longer the same hand or legs as when attached to the body. Similarly, a godless civilization detached from the transcendental loving service of the Supreme Personality of Godhead is just like a detached hand or leg. Such part and parcel may appear like hands and legs, but they have no efficiency. The devotees of the Lord, Sri Vyasdeva knows this very well. He is further advised by Srila Narada to expand the idea so that the entrapped conditioned soul may take lessons from him to understand the Supreme Lord as the primeval cause. According to the Vedic version, the Lord is the naturally fully powerful, and thus his supreme energies are always perfect and identical with him. Both the spiritual and the material skies and their paraphernalia are emanations of the internal and external energies of the Lord. The external energy is comparatively inferior, whereas the internal potency is superior. The superior energy is living force, and therefore she is completely identical, but the external energy, being inert,
is partially identical, but both the energy are neither equal to nor greater than the Lord, who is the generator of all energies. Such energies are always under his control, exactly as electricity energy, however powerful it may be, is always under the control of the engineer. The human being and all other living beings are product of his internal energies. Thus, the living being is also identical with Lord, but he is never equal or superior to the personality of Godhead. The Lord and living beings are all individual persons. With the help of material energy, the living beings are also creating something, but none of their creation are equal or superior to the creation of the Lord. The human being may create a small playful Sputnik and may throw it into the outer space, but that does not mean that he can create a planet like the Earth or Moon and float it in the air as the Lord does. Men with a poor fund of knowledge claim to be equal to the Lord. They are never equal to the Lord. This is never to be. The human beings, after attaining complete perfection, may achieve a large percentage of the qualities of the Lord, up to 78%, but it is never possible to surpass the Lord or to become equal with him. In a diseased condition only, the foolish being claims to be one with the Lord and thus become misled by the illusion energy. The misguided living beings therefore must accept the supremacy of the Lord and agree to render loving service to him. For this they have been created. Without this, there cannot be any peace or tranquility in the world. Srila Vyasadeva is advised by Srila Narada to expand this idea in the Bhagavatam. In the Bhagavad Gita also the same idea is explained. Surrender fully unto the lotus feet of the Lord. That is the only business of the perfect human being. Krishna. Hare Krishna, thank you, bro. Wonderful verse again. अब वो क्या बोल रहे हैं नारद मुनि? Suddenly he changed the topic, as I said, right? That he started giving he's telling now, okay, who is Krishna? He's giving a little bit of introduction, synopsis. कि यार जिसको तुमने छोड़ा है ना, वो कौन है? Just understand कि who is he, जिसके बारे में आपने लिखा नहीं है, right? Who is he? He himself is the cosmos, right? तो भगवत गीता में क्या बोलते हैं? चतुश्लोकी भगवत गीता में फर्स्ट श्लोक जो है उसमें 10.8 में वो कृष्णा हिमसेल्फ इज सेइंग अहम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्विता. I am the source of this entire creation. Everything emanates from me. Buddha Bhav, the one who knows this is, and the one who knows this serves me with love and devotion, right? So, and then again, he said, Maya Dakshin Prakriti, right? Sucharachar, right? So, again, he's saying, Maya Dakshin, I am the अध्यक्षण, मेरी सुपरविजन में प्रकृति काम करती है, राइट? दिस मटेरियल नेचर, his external energy, Maya, right? This is what it's saying. And and there is another verse, very typical one in Bhagavad Gita. Everything rests in me, right? वो भी एग्जांपल देते हैं. किसकी एग्जांपल दी है उसमें उन्होंने? पर्ल की. एक नेकलेस है. नेकलेस हमें बाहर से क्या दिखता है? कि नेकलेस दिखता है, बट वी डोंट नो कि उसके अंदर वेयर द नेकलेस इज रेस्टिंग ऑन. इनसाइड देयर इज अ थ्रेड. उस थ्रेड के ऊपर नेकलेस रेस्ट कर रहा है. सो कृष्णा इज दैट थ्रेड एज वेल, एंड ही इज द all the cosmic manifestation. Everything has emanated from him, right? So the creation happened by Mahavishnu की when he is breathing, सारे वो ब्रह्मांड उसमें से निकल रहे हैं. Then he is maintainer, and then after that his each breath as he inhales, that whole brahmand is going in his mouth. This we have discussed and we have seen in the diagram as well, right? I will not go into much detail. हम आगे जाके इसमें और डिटेल आएगा, right? As it is said, this is just a synopsis. He said you already know about this. श्रीला प्रभुपाद बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इस
परपोर्ट्स, इसका परपोर्ट स्टार्ट करते हैं। वो क्या बोल रहे हैं? फॉर अ प्योर डिवोटी लॉर्ड कृष्णा इज बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल, everything rests on him and he is still aloof from it, right? How we can understand this? Okay, how Krishna is both personal and impersonal. How is Krishna पहले impersonal देखते हैं. How Krishna is impersonal? Anyone wants to comment? Impersonal कैसे हैं कृष्णा? He is present everywhere, right? हम यही बोलते हैं ना, in the form of परमात्मा, हर एक बंदे के हृदय में उपस्थित है वो. In this way he is impersonal, right? And क्या एग्जांपल भगवत गीता में देते हैं कि सनशाइन, सन एंड सनशाइन, ऑल्दो sun is present there but the sun is coming in this room as well. So can we say that this is sun? Yes and no, both. Because the sunshine, we can say that there is sun room, there sun room बनते हैं ना, तो उनको sun room बोलते हैं, right? And at the same time we say actual sun is not present here, right? There are so many such examples. Yeah. So there are so many examples, right? And the other example हम क्या कह सकते हैं? It's like his energy, right? Energy के बारे में बात करी है ना उन्होंने नीचे. So it's like his energy. जैसे sun की energy आ रही है and we see that it is sun only. Same way he's saying part and parcels. हम क्या है हमारे में और कृष्णा में डिफरेंस क्या है? पार्ट एंड पार्सल, हैंड्स एंड लेग्स. अब देखा जाए, अब ट्री और बॉडी पार्ट्स के एग्जांपल दिए. अब ट्री के लीव्स क्या है? ट्री के लीव्स को भी हम ट्री बोल देते हैं बट इट इज नॉट एक्चुअली अ ट्री. ट्री इज डिफरेंट, ट्री की ब्रांचेस एंड लीव्स आर डिफरेंट. ठीक है, अगर मैं ट्री की ब्रांचेस और ट्री ब्रांचेस को काट दूंगा, ट्री कैन स्टिल लिव एंड नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट स्प्रिंग दे विल कम अप अगेन. सेम इज द केस विद योर हैंड्स एंड लेग्स. ऑल्दो दे विल नॉट कम अप बट ऑब्वियसली हैंड्स एंड लेग्स अगर मैं काट दूंगा तो बॉडी कैन स्टिल रिमेन टेक्निकली, राइट? So what we are branches, we are part and parcel, we are just the limbs. We do not have any identity. अगर मैं limb को काट के रख दूंगा, हाथ को या पैर को काट के अलग से रख दूंगा, no function, no efficiency. But body can still perform even without the limbs. Although there is some, this is the closest example which we can give, right? So energy जो है भगवान की, that is present everywhere. So in that way he is impersonal, right? तो अब इम्पर्सनल, अगर मैं बोलता हूँ कि सिर्फ इम्पर्सनल ही मानता हूँ मैं भगवान को, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं मानता हूँ कि ठीक है यार इम्पर्सनल है, तो और उपनिषद में और जगह पे भी लिखा हुआ है कि ही इज इम्पर्सनल, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम देयर? अगर मैं उनको सिर्फ इम्पर्सनल मानता हूँ तो आइडिया. चलो मैं आई थिंक ये थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाता हूँ प्रेजेंटेशन की हेल्प से. मेरी प्रेजेंटेशन दिख रही है आपको? दिख रही है? ऑलराइट. सो नाउ द क्वेश्चन इज द अल्टीमेट रियलिटी पर्सनल और इम्पर्सनल? तो इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं. मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा. वेयर इम्पर्सनल कंसेप्शन इज राइट, इम्पर्सनलिस्ट कहाँ पे सही है? वो कह रहे हैं कि गॉड इज अनलिमिटेड, राइट? गॉड तो अनलिमिटेड है, तो हम उसको पर्सन बना के, उसको फॉर्म बना के उसको लिमिट क्यों कर रहे हैं, राइट? जैसे हमारी फॉर्म है, अब मैं लिमिटेड हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैं इंडिया में नहीं हूँ. आई कैन बी ओनली एट वन प्लेस, राइट? बिकॉज आई हैव अ फॉर्म. सो दिस इज देयर कंसेप्शन कि मैं अगर किसी चीज को फॉर्म दे देता हूँ तो मैं उसको लिमिट कर रहा हूँ, जबकि भगवान तो अनलिमिटेड है. So why I am making him personal? So which is correct? Now where it goes wrong? ठीक है, form is limited, I understand, but now does formlessness makes it unlimited? क्या formless होने से, अगर किसी चीज की फॉर्म है, जैसे ये घर है, तो ये घर की एक फॉर्म है, तो ये लिमिटेड है. अगर मैं घर को तोड़ दूं
तो उसका जो डेब्रिस बचेगा, उसका जो मलबा बचेगा, तो क्या वो अनलिमिटेड हो जाएगा? नहीं, वो भी लिमिटेड ही रहेगा। सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी। अब रादर फॉर्मलेसनेस होने का नुकसान क्या है, इम्पर्सनल होने का क्या नुकसान है? अगर हम सिर्फ हमारी इम्पर्सनल कंसेप्शन है तो उसका नुकसान क्या है? दैट इट डिप्राइव्स अस द सोर्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द थिंग दैट इज मोस्ट अट्रैक्टिव इन द वर्ल्ड। अगर हम भगवान को फॉर्मलेस मान रहे हैं, ना हम उनकी पूजा कर पाएंगे, ना हम उनसे कोई लविंग रेसिप्रोकेशन कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ इम्पर्सनल कंसेप्शन, राइट? तो मैं और उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत ज्यादा उसमें है। सो अब क्या है पर्सनल फॉर्म? वी एवरीवन नोज, राइट? अर्च विग्रह की फॉर्म में पर्सनल फॉर्म है, राइट? सो बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल, कृष्णा इज बोथ। अब शंकराचार्य जब आए थे तो उन्होंने कौन सी फिलॉसफी दी थी? अद्वैत, अद्वैत फिलॉसफी। knows what is that philosophy? Advait philosophy क्या है? Anyone remembers? Advait philosophy is everything is one. आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, हम सब भगवान हैं, हम सब में क्यों? बिकॉज इम्पर्सनल, राइट? ही सेज दैट इट इज इम्पर्सनल, हम सब में प्रेजेंट है तो हम सब भगवान हो गए, राइट? यही तो इसमें बता रहे हैं प्रभुपाद कि हम भगवान होते हुए भी हम भगवान नहीं है, राइट? तो उसके बाद चलो इस पे नेक्स्ट आते हैं, ठीक है? तो मायावादी की भी यही फिलॉसफी है कि हम सब भगवान हैं, ठीक है? तो हमें, हमारी अभी फॉर्म है, जब हम मर जाएंगे हम ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएंगे, हम फॉर्मलेस हो जाएंगे, इम्पर्सनल में मर्ज हो जाएंगे, राइट? तो दिस इज Shankaracharya's philosophy, Mayavadi philosophy. Then comes the Madhvacharya. Madhvacharya ने बोला no, we are two. तो उनका ऐसे है, two, हम क्या हैं? दो हैं। क्या हैं? ईश्वर एंड जीवा। भगवान अलग है, हम अलग हैं। तो उनकी ये फिलॉसफी थी। एंड व्हाट इज आवर ड्यूटी इज टू सर्व द लॉर्ड, सर्व द कृष्णा, सर्व द गॉड, राइट? तो अब इसमें भी प्रॉब्लम है। इस फिलॉसफी में क्या प्रॉब्लम है कि हम उसके सर्वेंट्स हैं और हम भगवान एक ही है। इसमें ये प्रॉब्लम है कि हम अपने आप को टोटली डिफरेंट मान रहे हैं, वेयर एज इसमें क्या लिखा है प्रभुपाद ने कि वी आर पार्ट एंड पार्सल, सो वी आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। कृष्णा इज ऑल्सो सच्चिदानंद, वी आर ऑल्सो सच्चिदानंद। When I say we, I say Jiva, soul. Soul is also Satchidanand, right? Krishna ने बोला ना भगवत गीता में, there was never a time when I do not exist, you do not exist, all these kings do not exist. So all the souls were created at the same time, but still Krishna is the Purushottama. पुरुषों में उत्तम, he is at the top, right? तो जो मध्वाचार्य की फिलॉसफी थी कि we are different, Krishna is different, that is also not fully correct, half correct. Then comes the चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने क्या फिलॉसफी दी? अचिंत्य भेद अभेद, which means अचिंत्य means inconceivable. It is inconceivable कि how we can be God and at the same time we are not God. So भेद and अभेद, there we are separated parts and parcel of the God, ठीक है? We are separate but we at the same time we are part and parcel, we are the part of the God, right? So he basically harmonizes the two philosophies which makes sense as well, right? तो शंकराचार्य ने क्या कहा था कि, और ये the same thing is mentioned in our Vedas and Upanishads as well. तो उपनिषद में बहुत जगह पे इम्पर्सनलिज्म लिखा है कि भगवान इम्पर्सनल है, और बहुत ज्यादा जगह पे 90% ऑफ द प्लेसेस इट इज रिटन के ही इज पर्सनल एज वेल, राइट? सो अब जो वैष्णव हैं वो क्या बोलते हैं कि क्योंकि वेदास हैं, वेद व्यास ने लिखे हैं, हु इज हिमसेल्फ इज शक्ति आवेश अवतार, तो उन्होंने लिखे तो इट कैनॉट बी रॉन्ग, सो बोथ आर करेक्ट,
right? He is impersonal as well as he is personal. So that is the point. अब ये तो सारी हो गई फिलोसफी. अब आप बोलोगे कि यार व्हाट्स मेरे लिए क्या है प्रैक्टिकल, मुझे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैंने क्या सीखा आज इस पर्टिकुलर वर्स से. पिछले वर्स से तो हमने सीखा कि वी शुड लेट कृष्णा इंटरफियर इन आवर लाइफ, ठीक है. सो दैट इज इंपॉर्टेंट एंड शुड नॉट गो फॉर द सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड ऑल. इस वर्स से मैं क्या सीख रहा हूँ? 2 थिंग्स. एक चीज जो सीखी मैंने कि कृष्णा इज अ पर्सन एंड वी शुड ट्रीट हिम एज अ पर्सन, एंड उसका अलग लेवल है. ही इज द क्रिएटर, maintainer and the destroyer. So he is at a higher level than us. Second cheese, he is present everywhere as well. So we should start looking Krishna in our day-to-day lives as well. Krishna is there, which is internal us, यहाँ ऊपर है हमारे, जैसे भी उसको देखना है as a person, treat him, worship him, and at the same time look around everywhere. भगवद गीता 10th chapter में कृष्णा क्या बोल रहे हैं कि पर्वतों में मैं सोया हूँ, आई एम द टेस्ट ऑफ द वाटर. वो क्यों इतनी डिस्क्रिप्शंस दे रहे हैं, राइट? कि हर जगह पे मैं प्रेजेंट हूँ, सो दैट यू कैन रिलेट टू कृष्णा अपने. अब हमारे में एक प्रॉब्लम क्या है, हमारी चैंटिंग अच्छे से क्यों नहीं होती, या हमारा स्पिरिचुअलिटी में इतना टेस्ट क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज हम बोलते हैं ये अलग है, ये अलग है, ये मेरी मटेरियल लाइफ है, ये प्रैक्टिकल है, मेरी बीवी, मेरी जॉब, मेरे बच्चे, ये तो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ है. और ये एक अलग से लाइफ चल रही है, एक स्पिरिचुअल लाइफ, तो उसमें मैं चैंटिंग करता हूँ और वर्शिप करता हूँ. नो, दैट इज व्हाई द प्रॉब्लम इज बिकॉज हम दोनों फिलोसफीज में से एक फिलोसफी को भी पुट मोर स्ट्रेस ऑन. दैट व्हाट इज दैट फिलोसफी? That Krishna is a person and we love him and we worship him, but we don't see the other aspect. Other aspect is to stay where you are and look for Krishna everywhere in your life. So the moment you harmonize these two, which is Chaitanya Mahaprabhu's philosophy as well, कि Krishna is present everywhere and Krishna is also a different separate person. The moment you do that, your chanting will improve, your taste in bhakti will go up. Am I making sense or not? So basically the point is we should see Krishna in the hand of Krishna. जैसे मैंने पिछले वर्ष में बोला, start looking for the hand of Krishna in our daily life. Start connecting to Krishna in our day-to-day life. ठीक है? Make him a part of our job, our kids. जैसे पहले भी बोलते हैं ना कि kids are not my kids, they are Krishna's kids and we are just the caretakers. So if we do with such a mood, then we'll see Krishna everywhere, all around. Does that make sense? All right, it's 54 away, so I'll stop here and we'll see if anyone has any questions or doubts. I know आज का थोड़ा philosophical था, but ये दूसरा वाला थोड़ा heavy हो गया. दूसरे वाला verse, I know. I tried to keep it short, but yeah, कुछ verses अब आएंगे आगे जाके ऐसे जिसमें थोड़ा होगा ऐसा. तो इसलिए भगवत गीता पढ़नी